اور سرکاری املاک پر قائم تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ آپریشن 3 مقامات پر بیک وقت شروع کیا گیا ہے۔ 2 آپریشن کیفے پیالہ سے 3 ہٹی تک، جبکہ نیو کراچی نالے کے علاقے میں تیسرا آپریشن کیا گیا ہے۔ آپریشن میں پاک فوج اور رینجرز کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کے مطابق تجاوزات کے خلاف آپریشن 3 مقامات پر بیک وقت شروع کیا گیا ہے۔ 2 آپریشن کیفے پیالہ سے 3 ہٹی تک، جبکہ 1 آپریشن نیو کراچی نالے پر کیا جائے گا۔ آپریشن کے دوران گجر نالے کے 3، لیاری کے ندی کے 2، اورنگی نالے کے 3، ملیر ندی میں 2 اور محمود آباد نالے کے اطراف 2 مقامات پر تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ندی نالوں کے دونوں طرف 30 فٹ کی جگہ کلیئر کی جائے گی۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ہونے والے آپریشن کے دوران پاک فوج اور رینجرز کی ٹیمیں بھی شامل ہیں، جبکہ پولیس کی نفری، سوئی گیس اور کے الیکٹرک کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں۔ ڈی سی سینٹرل نے صبح 7 بجے تک گھر خالی کرانے کا اعلان کیا، جس کے خلاف علاقے کے افراد نے مظاہرہ کیا اور ناظم آباد اور لیاقت آباد کے درمیان ٹریفک معطل کر دی۔ پولیس اور سندھ حکومت نے بعد میں واضح کیا کہ آپریشن رہائشی نہیں کمرشل تجاوزات کے خلاف کیا جائے گا، جس پر مظاہرین منتشر ہوئے اور ٹریفک بحال کر دی گئی۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ حکومت نالوں کے اطراف رہائشیوں کو متبادل جگہ فراہم کرے، سیاسی حلقوں نے مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کہا کہ نالوں کے اطراف رہائشیوں کو متبادل جگہ فراہم کرنا ریاست کا فرض ہے۔ پاک سرزمین پارٹی نے بھی گھر گرانے کی مذمت کر دی ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم نے بیان میں کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر طے کیا گیا تھا کہ متبادل جگہ حکومت سندھ فراہم کرے گی۔ تجاوزات گرانے سے پہلے مکینوں کو متبادل جگہ فراہم کی جائے۔ پاک سرزمین پارٹی نے بھی گھر گرانے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سندھ خاندانوں کو متبادل جگہ اور پیسے فراہم کرے۔ سربراہ تنظیم ایم کیو ایم پاکستان بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار نے گجر نالے کے اطراف آپریشن پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی پیشگی نوٹس کے لوگوں کو گھر خالی کرانے کے احکامات ان کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف کراچی پہنچ گئے۔ کہتے ہیں حکومت کراچی میں بارش کے متاثرین کو معاوضہ دے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کراچی کی روشنی کو بجھنے نہیں دیں گے۔ بارش کے باعث اربوں روپے کے اثاثے تباہ ہوئے۔ مصیبت کے وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر سندھ حکومت کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے آئے ہیں۔ شہباز شریف کے دورہ کراچی کے دوران بلاول بھٹو زرداری سمیت اہم ملاقاتیں طے ہیں۔ نواز کے صدر شہباز شریف کی 1 روزہ دورے پر کراچی آمد۔ میڈیا سے گفتگو میں مطالبہ کیا کہ حکومت کراچی میں بارش کے متاثرین کو معاوضہ دے۔ کہا کراچی کی روشنی کو بجھنے نہیں دیں گے۔ بارش کے باعث اربوں روپے کے اثاثے تباہ ہوئے۔ مصیبت کے وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر سندھ حکومت سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہے۔ شہباز شریف دورہ کراچی کے دوران گلشن اقبال میں اپارٹمنٹ کی دیوار گرنے سے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کریں گے۔ منظور کالونی میں عمائدین اور پارٹی کارکنان سے ملاقات کریں گے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کے مطابق شہباز شریف نے 2018 کے عام انتخابات میں بلدیہ ٹاؤن سے بھی حصہ لیا تھا، اس لیے وہ بلدیہ ٹاؤن اور ضلع غربی کا بھی دورہ کریں گے، جبکہ وہ لیگی رہنماؤں کے ساتھ مشاورتی اجلاس بھی کریں گے۔ اپنے 2 روزہ دورے کے دوران شہباز شریف ایدی فاؤنڈیشن کے رہنما فیصل ایدی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ آفس میں منعقدہ اجلاس میں صوبائی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس، صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ آفس میں منعقدہ اجلاس میں صوبائی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کو عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے آج اہم اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں ایک اجلاس منعقد ہوگا جس میں صوبائی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ آفس میں منعقدہ اجلاس میں صوبائی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔
اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شعیب ہاشمی نے۔ شعیب ہاشمی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس جو ہے اس وقت جاری ہے۔ آج کے اہم اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے صوبائی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس اجلاس میں تمام صوبائی وزراء، مشیران، معاون خصوصی چیف سیکرٹری اور دیگر متعلقہ اداروں کے سیکرٹری جو ہیں وہ بھی شریک ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ باقاعدہ طور پر کچھ ہی دیر کے بعد اس اجلاس کے بعد حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے تقریب جو ہے وہ منعقد کی جائے گی، اور اس تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب بطور مہمان کی شرکت کریں گے، اور اس میں حکومت کی جانب سے تمام تر جو کارکردگی دکھائی گئی ہے گزار حکومت کی جانب سے اس حوالے سے روشنی ڈالی جائے گی، اور عوام کو بتایا جائے گا کہ گزار حکومت کی جانب سے کیا کیا اقدامات پنجاب میں عوام فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اہم اجلاس میں صوبے میں میرٹ، شفافیت اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی کے مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ 2 برس کی قلیل مدت میں وہ کام کیے جو ماضی کی حکومت کئی دہائیوں سے نہیں کر سکی۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ شفافی نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں، اور صوبے میں آئندہ بھی صوبے میں عوام کی خدمت اور فلاح کے کام کرتے رہیں گے۔ جی شعیب ہاشمی، یہ بتائیے گا گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اس کی تفصیلات بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز وزیر اعظم 1 روزہ دورے پر لاہور آئے، اور ایئرپورٹ سے سیدھے وہ ایوان وزیر اعلیٰ آئے، جہاں سب سے پہلے ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو پنجاب کے سیاسی اور انتظامی معاملات سے آگاہ کیا، بلکہ اپنی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی، جس پر وزیر اعظم نے کچھ اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو حالیہ دنوں چودھری برادران سے ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیا، جبکہ وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب میں تمام انتظامی افسران جو ہیں انہیں تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیلات کے بارے میں بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ آفس میں اجلاس منعقد ہوگا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوگا، جس میں صوبائی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پیش کی جائے گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے کہا ہے کہ شراب لائسنس کیس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو دوبارہ نوٹسز بھجوا چکے ہیں، لیکن ابھی تک جواب جمع نہیں کرایا گیا۔ ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے لاہور کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، نیب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ میرٹ پر کارروائی کرتے ہیں۔ مریم نواز کو طلب کر کے ہم نے پتھر کھائے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی نیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو دوبارہ نوٹسز بھجوائے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک جواب جمع نہیں کرائے۔ ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے لاہور کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ میرٹ پر کارروائی کرتے ہیں۔ مریم نواز کو طلب کر کے ہم نے پتھر کھانے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شراب لائسنس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو دوبارہ نوٹسز بھجوائے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک جواب جمع نہیں کرایا۔ ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شیجوالدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹ۔ مطلع کبھی صاف اور کبھی جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں آئندہ 2 ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ 15 ستمبر تک مونسون شہر سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ستمبر میں مطلع کبھی صاف اور کبھی جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ماضی میں ستمبر میں اوسط بارش 11 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
आपको बताएं कि कराची वालों के लिए खुशखबरी है। बारिश से तंग आए कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। महकमे मौसमियात का बताना है कि 15 सितंबर तक मानसून शहर से रुखसत हो जाता है। कराची में आइंदा 2 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। 15 सितंबर तक मानसून शहर से रुखसत हो जाता है। सितंबर में मतला कभी साफ और कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक माजी में सितंबर में औसत बारिश 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बारिश से सताए कराची के लिए अच्छी खबर है। कराची के बासियों के लिए 15 सितंबर तक मानसून शहर से रुखसत हो जाएगा। कराची में आइंदा 2 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। 15 सितंबर तक मानसून शहर से रुखसत हो जाता है। सितंबर में मतला कभी साफ और कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक माजी में सितंबर में औसत बारिश 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची से आपको बताएं कि अच्छी खबर है। कराची में आइंदा 2 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 15 सितंबर तक मानसून शहर से रुखसत हो जाता है। सितंबर में मतला कभी साफ और कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक माजी में सितंबर में औसत बारिश 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि कराची वालों के लिए अच्छी खबर है और महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 2 हफ्तों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। 15 सितंबर तक मानसून शहर से रुखसत हो जाता है। इस पर बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची मलिक मुनव्वर हुसैन ने। मलिक मुनव्वर, बताइएगा, कराची वालों के लिए बिलाखिर अच्छी खबर है। बारिश से सताए कराची वालों के लिए महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर सुबहानी आपने बजा फरमाया है कि कराची के शहरियों के लिए एक अच्छा खबर महकमा मौसमियात ने सुनाई है कि मानसून का जो सिस्टम था वो कमजोर पड़ गया और मजीद 2 हफ्ते जो है बारिश न पड़ने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। हम इस हवाले से महकमा मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि 15 सितंबर तक ये सिस्टम होता है, मगर अब चूंकि 2 हफ्ते बारिशें नहीं होंगी तो सूरत जो मौसम है वो बरसूख रहेगा, मगर बरसात नहीं होगी। तो हम एक बार दूसरी तरफ आपको ये भी बताता चलूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब जो है कल तशरीफ लाए थे कराची में और उन्होंने कराची का भी फजाई जायजा भी लिया है और साथ साथ उन्होंने बड़े अहम उसमें फैसले भी किए गए हैं। और रात गए से जो गुजर नाला है, जो बरसाती नाले थे, नदियां हैं, उनके जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं वहाँ पर ऐलानात मस्जिद के जरिए किए गए हैं। मसाजिद से ये ऐलान किए गए हैं कि वो अतराफ की जो आबादी के लोग हैं, जो नाले के इर्द गिर्द जो आबाद हैं, वो अपने घर खाली कर दें और वहाँ तोड़ फोड़ का जो सिलसिला वो शुरू किया, क्योंकि बरसात की वजह से ये मामला रुक गया था। और अभी भी मैं गुजर नाले पर मौजूद हूँ, मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं और वो विजिट कर रहे हैं पूरे इलाके का। और इस वक्त जो एंटी इंक्रोचमेंट टीम में उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह से ही उनकी जो पुलिस की इजाफी नफरी है, एक्सीवेटर वगैरह मशीनरी तलब कर ली गई है और जो नाले के अतराफ में जो शेड वगैरह या जो भी रुकावटें थी उसको दूर करने का जो सिलसिला उसको शुरू कर दिया गया। मगर इस हवाले से आवाम भी बड़ी बाहर निकली, उन्होंने एहतजाज किया है। वकीलों का कहना है कि उन्हें को मुतबादल जगह दी जाए, जिसके बाद अगर कोई घर भी तोड़े जाते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं है, मगर उन्होंने खरीदे हैं और असर दराज से यहाँ पर आबाद हैं। तो इस हवाले से अब ये बात सामने आई है कि इब्तदाई तौर पर जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको दूर किया जाएगा, बाद इसका सर्वे करके और मकीनों को जो है उसको मुतबादल के तौर पर कोई सेटलमेंट जो है वो दिया जाएगा। तो हम अभी ये कहना कबल अज़ वक्त हो गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जुमे के रोज कराची आना है और एक मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने बड़े मनसूबों के हवाले से ऐलानात भी करने हैं। बड़े मनसूबों के हवाले से ऐलानात करने हैं। मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा कि सियासी पार्टियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि तजावुज़ात तो हटाई जा रही हैं, घर गिराए जा रहे हैं, लेकिन जो नालों पर लोग रहायश पजीर हैं उनको मुतबादल जगह फराहम की जाए। इस हवाले से सिंध हुकूमत का क्या कहना है? जी, ये रात को मैंने बताया कि लियाकताबाद, गुलबर्ग, नाफराबाद, शफीक मोड़ के गुजर नाले के जो सबके लोग थे, जब मसाजिद से ऐलान किए गए तो रात गए वो लोग बाहर सड़कों पर निकल आए थे, उन्होंने ट्रैफिक वगैरह ब्लॉक कर दी, एहतियात कर रहे थे। जिसके बाद मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान और पाक ज़मीन पार्टी के जो रहनुमा हैं, चेयरमैन मुस्तफा कमाल भी
उनके भी ये बयान सामने आए। उन्होंने भी इसी वक्त ट्वीट किया और अपना मरासले जारी किए कि इनके घर गिराने से पहले इनको मुतबादल के तौर पर जगह अलाट की जाए, जिसके ऊपर ये उनका मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहरी इलाकों में सैलाबी कैफियत और नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि गुजरांवाला, नारोवाल, हाफिजाबाद, सियालकोट, गुजरात, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने वाज़ेह हदायत देते हुए कहा है कि बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है, इसलिए तमाम मुतलका इदारे अलर्ट रहें। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान ने। राना कामरान, बताएगा इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और महकमे मौसमियात की जानिब से क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का हाई अलर्ट जारी कर दिया। शहरी इलाकों में जो
सप्लाई है नदी नालों में पानी की, वो तुगयानी का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोटोखार में मूसलाधार बारिशों का जो इम्कान है, जिस वजह से जो बलाई इलाकों में जब बारिश होती है तो सारा पानी जो है वो नालों में वो उस तरह आता है। और इससे तुगयानी और इस तरह दरिया किनार की बात की जाए, समा की बात की जाए, रावल डैम की बात की जाए, तो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने रावल डैम के जिस पहले वो भी खोल दिए थे, जिससे कुछ जो देही इलाके थे वो ज़ेरे आब आने का खदशा था और उनको हाई अलर्ट जारी कर दिया था। तो इस्लामाबाद में भी जो बादल हैं वो जमकर बरसेंगे। अभी पिछले 2 दिन से मुसलसल जो है वो हल्की हल्की बूंदाबारी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में आज थोड़ा सा मौसम खुशगवार है, लेकिन बादल जो है वो फिर भी छाए हुए हैं और जो अगले 24 घंटे हैं उसमें मजीद बारिश जो है उसके इम्कान हैं। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद में हल्के बादल छाए हैं और बारिश का कभी इम्कान है। दरियाए सवात और नदी नालों के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब का खतरा पैदा हो गया। मकामी इंतजामिया ने सैलाब के खतरे के पेश नजर मदीन और बहरीन में दरिया किनारे कायम होटल खाली करा लिए हैं। इंतजामिया ने होटल्स में मौजूद सयाहों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत कर दी है। आपको बताएं कि सवात में नदी नालों में तुगयानी आ गई है, जिसके बायस इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मकामी इंतजामिया ने सैलाब के खतरे के पेश नजर मदीन और बहरीन में दरिया किनारे कायम होटल खाली करा लिए हैं। इंतजामिया ने होटल्स में मौजूद सयाहों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत कर दी है। अवाम के लिए बुरी खबर है, नेपरा ने बिजली की कीमतों में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा में सीपीपीए की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त पर समाअत हुई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 20 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6318 हो गई। मजीद 489 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,96,596 हो गए। 441 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,81,459 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 20 मरीजों की जान चली गई। सिंध में 2,403, पंजाब में 2,199, खैबर पख्तूनख्वा में 1,250, बलोचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 67, आज़ाद कश्मीर में 63 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 300 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 96,832, सिंध में 1,29,470, खैबर पख्तूनख्वा में 36,118, बलोचिस्तान में 12,880, गिलगित बल्तिस्तान में 2,903, इस्लामाबाद 15,650, आज़ाद कश्मीर में 2,298 मरीज हो चुके हैं। कोरोना दुनिया भर में 2,59,00,000 मरीज हो गए। हलाकतें 8,61,000 हो गईं। अमेरिका में 1,88,000, ब्राजील में 1,22,000 अमवात, 1,81,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका में 1,87,737, ब्राजील में 1,21,515, मैक्सिको में 64,414, रूस में 17,300, भारत में 65,500, तुर्की में 6,370, ईरान में 21,571, अफगानिस्तान में 1,402 और सऊदी अरब में 3,900 अमवात हो चुकी हैं। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का फुट एंड माउथ रिसर्च सेंटर बरकी रोड का दौरा।
एडिशनल डायरेक्टर फुट एंड माउथ रिसर्च सेंटर डॉक्टर राशिद ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने तहकीकी और तरक्याती स्कीमों में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने कहा कि तहकीकी इदारों के कल्चर को फरोग देना होगा। तहकीकी इदारों को आलमी मयार के मुताबिक बनाने की जरूरत है। रिसर्च मीटिंग्स में सीनियर प्रोफेसर्स, मुहक्किकीन और स्कॉलर्स ने शमूलियत मुफीद होगी। जिला भर में 24 घंटों से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के बायस कई मकानात की छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि मनकीरा में छत गिरने से एक खातून और दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। देखते हैं भक्कर से सैफुर रहमान की रिपोर्ट। भर की तरह भक्कर में भी 2 दिन से जारी मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी है। जिला के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली इत्तलाआत के मुताबिक छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में एक खातून हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए कि 20 जानवर भी मलबे तले दबकर हलाक हो गए हैं। बारिश का पानी न सिर्फ घरों, दुकानों बल्कि कब्रिस्तानों में भी दाखिल हो चुका है, जिससे कब्रों की बेहुरमती के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मनकेरा और हैदराबाद के इलाके में मुतअद्दिद कच्चे मकानात के गिरने से एक खातून मौके पर दम तोड़ गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जिनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद THQ रेफर कर दिया गया। इसी तरह हैदराबाद के इलाके में बाड़े की छत गिरने से 10 से ज्यादा बकरियां मलबे तले दबकर हलाक होने की इत्तलात हैं। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन की दादरसी की जाए। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ सैफुर रहमान, TV टुडे भक्कर। रहीम यार खान शहर में मुजरे सेहत शवारमे की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। इंतजामिया और महकमे पंजाब फूड अथॉरिटी का खामोश तमाशाई का किरदार। कार्रवाई न करने पर शहरी एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। रहीम यार खान शहर में मुजरे सेहत खाना और शवारमे की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है, जिससे शहरी बीमार होने लगे हैं, जिस पर शहरियों ने आज जेल रोड पर एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने शवारमे खाने मुजरे सेहत होने की वजह से हमारी हालत खराब हो गई थी, जिसकी शिकायत और फूड पंजाब अथॉरिटी को तहरीरी दरखास्त भी दी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों का DC रहीम यार खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। ये जो जिम बार है, इसलिए ये एहतजाज किया जा रहा है कि ये यहाँ पर एक तो खाना यहाँ पर सही नहीं मिला जाता यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर उन्होंने गुंडागर्दी की हुई है। कोई भी स्टूडेंट आए उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, और ज़्यादा कोई करे तो DCO साहब से हम मुतालबा करते हैं, हम AC साहब से और हम फूड वालों से मुतालबा करते हैं इसे जल्द और जल्द सील किया जाए और इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। ख्वाजा फरीद कॉलेज के हम स्टूडेंट हैं और यहाँ पर ख्वाजा फरीद कॉलेज में पढ़ते हैं, और यहाँ से बर्गर वगैरह, शोरमा वगैरह खाते हैं, और नाकस शोरवा है और नाकस बिल्कुल बर्गर है। हम एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं, हम जिम बार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ नाकस खाना मुयसर किया जा रहा है। हमने इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया था और बहुत से फोरम इस्तेमाल किए हैं, हमारी फिर भी नहीं सुनवाई जा रही। जिम बार सेंट्रल जेल के करीबी वाक़े है। हमारा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे। सरगोदा के इलाके में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सरगोदा की तहसील साहिवाल में कल से होने वाली मूसलाधार बारिश से कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तहसील साहिवाल में 2 दिन से लगातार बारिश से गलियां मोहल्ले पानी से भर गए। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल एहसन मुमताज गोंदल के अहकामात पर बल्दिया साहिवाल चीफ ऑफिसर चौधरी शहरयार बड़ाइश ने शहर भर का दौरा किया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा पानी निकालने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। बल्दिया के अमले के हमरा मुख्तलिफ गलियों, मोहल्लों और कब्रिस्तान, लालशाह कब्रिस्तान और दीगर बस्तियों से बारिश के पानी की निकासी के लिए नालों की सफाई शुरू करवाई गई। चौधरी शहरयार बड़ाइश का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया एहसन मुमताज गोंदल की सरपरस्ती में तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे और शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी, जिस पर शहरियों ने चीफ ऑफिसर की काविशों को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करेंगे खुशाब से, जहां पर बारिशों ने तबाही मचा दी। खुशाब शहर में अक्सर मोहल्ले पानी में डूब गए। पानी लोगों के घरों में दाखिल और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान खान से। जी बताइएगा। तबाही मचा कर रख दी है।
जब इस वक्त हम मौजूद है खुशाब के मल्ला ताजपुरा शुमाली में, जहाँ पर बारिश का पानी सैलाबी रेला अख्तियार कर चुका है और ये पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। अपनी मदद आप के तहत लोग घरों में से सामान निकाल रहे हैं। खुशाब की इंतज़ामिया बेबस हो चुकी है। अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम की सूरत हाल ये है कि मज़ीद 3 दिन बारिश होने का। बहुत शुक्रिया उमर खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान ने शाही खानदान के 2 अफराद समेत अहम फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया। सऊदी फरमारवा ने करप्शन के इल्जामात पर शाही खानदान के सीनियर मेंबरान और फौजी हुकाम को उनकी जिम्मेदारियों से सुबकदोश कर दिया। शाही फरमान में सऊदी अरब की जॉइंट फोर्सेस के कमांडर समेत 2 इंतहाई सीनियर हुकाम को बरतरफ करने का हुक्म जारी किया गया। कमांडर जॉइंट फोर्सेस फाहद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज और उनके बेटे अब्दुल अजीज बिन फाहद बिन तुर्की पर तहकीकात में करप्शन के इल्जामात साबित होने पर बरतरफ किया गया। शाम में इसराइली फजाइया की बमबारी में खातून समेत 11 अफराद हलाक हो गए। दमिश्क के जनूबी इलाके में इसराइल ने अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर फजाई हमले किए। हलाक होने वालों में ईरान नवाज मलेशिया के 7 गैर मकामी अरकान और शामी फौज के 3 एहलकार शामिल हैं, जबकि एक खातून राहगीर भी जख्मी आ गईं। गैर जानिबदार जराये के मुताबिक हलाकों की तादाद कहीं ज्यादा है। दूसरी जानिब शाम में हुकूमती और इत्तेहादी अफवाज ने मुल्क के बेशतर हिस्सों से दाइश का कब्जा बागजार करवा लिया, लेकिन अदलिब के कुछ इलाकों में अभी भी अफवाज को जंगजुओं की जानिब से मज़ामत का सामना है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद ने इसराइल से मुआहदे के नतीजे में फलस्तीन कौस की अहमियत कम होने का तासुर मुस्तरद कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने कहा है कि यूएई और इसराइल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के हालिया मुआहदे से फलस्तीन कौस की अहमियत कम नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात फलस्तीनियों का दूसरा मुल्क है और यूएई बैतुल मक़दस को दारुल हुकूमत बनाए जाने के साथ आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपने अज़्म पर कायम है। वली अहद का कहना था कि अमन एक स्ट्रेटेजिक इंतखाब है, लेकिन ये फलस्तीनी कौस पर समझौता नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मुजाहिरीन को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार और 17 साल के मुलजिम के दिफा में सामने आ गए। केनोशा में 17 साल नौजवान ने 2 मुजाहिरीन को कत्ल कर दिया था। अमेरिकी सदर का कहना था कि मुलजिम ने अपने दिफा में यह कदम उठाया। फायरिंग से कबल उस पर बेईमाना तरीके से तशद्दुद किया गया था। मुलजिम भी हमलावर से भागने की कोशिश कर रहा था। वो मुश्किल में था, शायद मार दिया जाता। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स